વિશ્વ એમએસએમઈ દિવસ 2025 ટેક્સટાઇલ એમએસએમઈ માટે ઉર્જા કાર્યક્ષમતા અને વૈકલ્પિક ઇંધણ પર સેમિનાર વડોદરા ખાતે યોજાયો. વિશ્વ એમએસએમઈ દિવસ 2025ની ઉજવણીના ભાગરૂપે ઇકો એનર્જી કનેક્ટ શીર્ષક હેઠળ સુરતના ટેક્સટાઇલ એમએસએમઈસ માટે ઉર્જા કાર્યક્ષમતા, ધિરાણ અને વૈકલ્પિક ઇંધણને સક્ષમ બનાવવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ સેમિનાર યોજાયો. આ કાર્યક્રમ ગુજરાત પોલ્યુશન કંટ્રોલ નિયંત્રણ બોર્ડ જીપીસીબીના રિજનલ ઓફિસર ડૉક્ટર જિજ્ઞાસાબેન ઓઝાની અધ્યક્ષતામાં પલસાણા એન્વાયરો પ્રોડક્શન લિમિટેડ પીઈપીએલ કડોદરા ખાતે કોન્ફરન્સ હોલમાં તારીખ 26 જૂન 2025ના રોજ યોજાયો હતો. આ સેમિનારનો ઉદ્દેશ ટેક્સટાઇલ એમએસએમઈસને ઉર્જા કાર્યક્ષમતા વધારવા અને પર્યાવરણને અનુકૂળ વૈકલ્પિક ઇંધણના ઉપયોગને પ્રોત્સાહન આપવાનો હતો. આ કાર્યક્રમમાં ઉદ્યોગ સાહસિકોને ધિરાણની તકો અને ટકાઉ ऊर्जा उकेलों विषय मार्गदर्शन आपवामां आव्युं हतुं. प्रोग्राम चल रहा है, इससे कंपनी को क्या फायदा रहता है और लोगों को क्या फायदा रहता है? मेरा नाम रविंद्र आर्या, मैं चेयरमैन हूँ पलसाना एनवायरो प्रोडक्शन लिमिटेड पीईपीएल का. आज हम लोगों ने यहाँ पे ये एक प्रोग्राम किया है जिसमें पीईपीएल और गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और WRI वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने मिलकर के ये प्रोग्राम किया है. और इस प्रोग्राम को करने का ये दिन हमने आज इसलिए नक्की किया है कि ये वर्ल्ड एमएसएमई डे है. तो सूरत में ये दूसरा प्रोग्राम हो रहा है. पिछले साल पहला हुआ था, इसका नाम है इको एनर्जी कनेक्ट 2. तो इसमें हम ये बताते हैं कि एनर्जी एफिशिएंसी और किस तरह से एनर्जी में सेविंग की जा सकती है जिससे कि एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट को बचाया जा सके. और साथ में जो यूज़र हैं जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो वो एक बहुत बड़ी एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री है, उसमें एनर्जी का बहुत ज़्यादा खपत है. तो अगर सभी लोग इंटरेस्ट लेंगे तो एनर्जी सेविंग के बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़, उन सब के ऊपर इस प्रोग्राम में चर्चा होती है. और उसमें सरकार की तरफ से कितनी सारी सब्सिडीज़ दी जा रही है उसके बारे में भी चर्चा है कि अगर आप कोई नई चीज़ एडॉप्ट करते हैं, नई टेक्नोलॉजी लाते हैं तो उसमें सरकार की इंटरेस्ट सबवेंशन की बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, फाइनेंसिंग की फैसिलिटीज़ है, उन सब के बारे में भी चर्चा हो रही है. इसके अलावा आज हमने यहाँ पे ये एक स्टॉल्स भी रखे हैं जिनमें जितने बायोमास प्रोड्यूसर्स हैं वो सब अपना अपना बायोमास यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं. तो वो उससे कार्बन एमिशन कम होगा और वो इंडस्ट्री के लिए बहुत फ़ायदेमंद है. નમસ્તે, હું ડૉક્ટર જિજ્ઞાસા ઓઝા ગુજરાત પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડ સુરતથી છું અને આજે અહીં પીઈપીએલ ખાતે લગભગ 150 ઔદ્યોગિક એકમો જે એમએસએમઈ થી બિલોંગ કરે છે એની સાથે આજે એમએસએમઈ ડે આમ તો 27 જૂને હોય છે, પરંતુ રથયાત્રાને કારણે અમે એક દિવસ આગળ ઉજવવાનું નક્કી કર્યું અને આજે આ 150 ઔદ્યોગિક એકમોની સાથે અહીં બ્યુરો ઓફ એનર્જી એફિશિયન્સીમાંથી, WRIમાંથી, બોઇલર ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી અને વિવિધ એસોસિએશન છે, એસોસિએશનના પ્રેસિડેન્ટની સાથે આજે અમે ઉજવી રહ્યા છીએ. અને આજનો અમારો જે કેપ્શન છે આજના પ્રોગ્રામનું એ છે ઇકો એનર્જી કનેક્ટ. તો એનર્જીનો જે યુટિલાઇઝેશન છે કે એનર્જીનો જે વપરાશ છે એ વપરાશ જો આપણે વિચારપૂર્વક કરીએ તો આપણું જે પર્યાવરણ છે કે આપણી જે ઇકોલોજી છે એ ઇકોલોજી છે એ સમૃદ્ધ થાય, પર્યાવરણ બચે અને જે કંઈ આપણા વાતાવરણની અંદર પ્રદૂષણનો જે ખતરો છે ધીમે ધીમે ઓછો થતો જાય. આજે આપણે જાણીએ છીએ કે હવા જે છે, હવા ધીમે ધીમે વસ્તી વધારાને કારણે, આપણી માનવીય પ્રવૃત્તિને કારણે, ઔદ્યોગિક પ્રવૃત્તિને કારણે ધીમે ધીમે એ ડિટોરિએટ થઈ રહી છે. એની જે શુદ્ધતાની ક્ષમતા છે એ ઘટી રહી છે. ત્યારે આજના તબક્કે ઇન્ડસ્ટ્રી, રેગ્યુલેટર્સ અને NGOs બધા ભેગા મળી અને જો એક દિશામાં દ્રષ્ટિ કરશે તો નક્કી જે આપણું ભવિષ્ય છે, ખાસ કરીને સુરતનું અને સુરત સાથે સંકળાયેલા ઔદ્યોગિક એકમોનું, એ ખૂબ જ ઉજ્જવળ મને દેખાઈ રહ્યું છે. કારણ કે આજનો અમારો જે આ પ્રોગ્રામ છે, જે કાર્યક્રમ અમે આયોજન કર્યો છે, એનો હેતુ જ એ છે કે કઈ રીતે
આપણે પ્રદૂષણનો ધીમે ધીમે ઘટાડો કરીએ, આપણા જે ઉદ્યોગોની જે ગતિવિધિ છે એને આર્થિક કેવી રીતે વેગ અપાવી શકીએ અને સાથે સાથે લોકોની સુખાકારીને કેવી રીતે સાચવવી શકીએ, તો એ અંગેનો આજનો અમારો આજે સફળ કાર્યક્રમ જે અમે કર્યો છે એ બદલ હું સુરતના ઉદ્યોગપતિઓ, સુરતના વિવિધ એસોસિએશનો, WRI, બ્યુરો ઓફ એનર્જી એફિશિયન્સીમાંથી પધારેલા શ્રી મિલિંદ સર અને સાથે સાથે જે કંઈ ઇન્ટરેસ્ટેડ પાર્ટનર્સ છે અને બાયોકોલ એસોસિએશન એ તમામે તમામનો સહૃદયતાપૂર્વક આભાર માનું છું. ધન્યવાદ. नमस्कार, मेरा नाम मिलिंद देवरे है. मैं सचिव हूँ ऊर्जा दक्षता ब्यूरो भारत सरकार दिल्ली से आज इस कार्यक्रम में सहभागी हुआ हूँ. मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि सूरत के जो उद्यमी है, जो इंडस्ट्रीज़ है, पर्टिकुलरली MSMEs, ये बहुत ही प्रोएक्टिव और बहुत ही उत्साहित यूनिट्स है. तो जैसे कि आप जानते हैं कि भारत सरकार एनर्जी एफिशिएंसी और ऊर्जा दक्षता के लिए, ऊर्जा बचाने के लिए काफ़ी सारे प्रयास कर रही है. और MSMEs में हमने ये देखा है कि ऑलमोस्ट 15 to 20% उनकी एनर्जी बचाई जा सकती है अगर वो नई तकनीकी, नई टेक्नोलॉजीज़ अगर अपनाएं, एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज़ अपनाएं. तो सूरत एक ऐसा क्लस्टर है जहाँ पे लगभग 400 से ज़्यादा टेक्सटाइल यूनिट्स है और इनमें कई सारे टेक्नोलॉजी जो है वो थोड़ी सी बोल्ड हो चुकी है. इसको एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी से अगर हम बदलेंगे तो कम से कम 15 से 20% इनकी एनर्जी सेविंग्स होगी और इससे इनका प्रॉफिट भी बढ़ेगा और इंडस्ट्री काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो जाएगी. तो भारत सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए एक स्कीम भी अब हम लॉन्च करने वाले हैं भारत सरकार की तरफ से, जिसका नाम है आदिति, जिसमें MSME यूनिट्स को हम इंटरेस्ट सबवेंशन देंगे और इंटरेस्ट की सब्सिडी देंगे और जो यूनिट्स आगे आकर एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज लगाएंगे उनको हम काफ़ी सारा सपोर्ट देंगे, इंटरेस्ट सब्सिडी देंगे और टेक्निकल सपोर्ट भी उसमें मुहैया कराया जाएगा. तो मैं चाहता हूँ कि सूरत क्लस्टर से ज़्यादा यूनिट्स इसमें पार्टिसिपेट हो और इस स्कीम का फ़ायदा ले और ज़्यादा से ज़्यादा अपना कॉम्पिटिटिवनेस बनाए. मैं और एक बात बताना चाहूँगा कि एनवायरनमेंट के प्रति भी सूरत के सभी यूनिट काफ़ी सजग है और वो सभी तरीके के जो पर्याय है, उपाय है वो करते हैं. मैं इस बात को लेके भी काफ़ी हर्ष हूँ. थैंक यू सो मच. मेरा नाम अश्विनी हिंगने है. मैं एसोसिएट प्रोग्राम डायरेक्टर हूँ WRI इंडिया से. मैडम, आज जो प्रोग्राम है इससे क्या फ़ायदा रहेगा इंडस्ट्रीज को और इससे क्या क्या रहेगा? हम यहाँ पर GPCB के साथ हमारा इनिशिएटिव है राइज, विच इज़ रेजिलिएंट, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एंटरप्राइजेस. तो हमारी कोशिश ये है कि यहाँ की जितनी MSMEs है उनको हम क्लाइमेट चेंज के लिए कैसे प्रिपेयर करें और क्लाइमेट चेंज कैसे मिनिमाइज करें, क्योंकि उनकी एनर्जी यूज़ जो होती है, एमिशंस होते हैं, उसको कम कैसे करें, रिसोर्स यूज़ को कैसे कम करें. तो आज का टॉपिक था कि बॉयलर्स जो है जिनमें ज़्यादातर कोल यूज़ होता है, उसमें हम कैसे ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स लेकर आए. BEE जो आए थे उन्होंने हमें ऑल्सो बताया कि एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. इन दोनों के लिए क्या कॉस्टिंग होगी, क्या स्कीम्स अवेलेबल है, कौन से सप्लायर्स हैं, उन सब के बारे में डिस्कशन हुआ है और यहाँ पे टेक्निकल एक्सपर्ट्स को भी बुलाया हुआ है. तो हम चाहते हैं कि जो MSMEs है और जो सप्लायर्स है और एक्सपर्ट्स है और गवर्नमेंट है, सब एक साथ मिलकर ये सारे इनिशिएटिव को आगे लेकर जाए और ये यहाँ के क्लस्टर्स और यहाँ के MSMEs को ज़्यादा एफिशिएंट बनाए. मैडम, ये जो मतलब इसका जो अमल होगा तो पर्यावरण में कितना फायदा रहेगा? तो इससे दो चीज़ें होती है. एक तो है कि जो पोल्यूशन है वो कम होगा क्योंकि हम कोल नहीं यूज़ कर रहे हैं और बायोफ्यूल यूज़ कर रहे हैं जो कि एग्रीकल्चरल वेस्ट है, उसके एमिशंस भी कम होते हैं. और दूसरी चीज़ है जो ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज जिसको कहते हैं, उससे रिलेटेड जो एमिशंस होते हैं वो भी कम हो जाते हैं. तो उन दोनों की वजह से हमारे जो क्लाइमेट चेंज के हम जो असर देख रहे हैं, जैसे कि बहुत सारी गर्मी या फ्लड्स, वो सारी चीज़ों को फ्यूचर में हम कैसे कम रख सकते हैं. और दूसरी चीज़ है हमारी जो ब्रीदिंग एयर क्वालिटी है, ज़्यादा जो एफ्लुएंट्स है हमारे जो फैक्ट्री से जा रहे हैं, उनको कैसे कम करें.
इन सब से हमारी जो सेहत है और हमारे जो लाइफ है और हमारे जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं।